Find the number that will replace the question mark. Where that question mark is, here that is, and here are four alternatives for to replace the question mark, as you can see here. Yes viewers, welcome to Didi Sang Seekho channel. Hello viewers, how are you? Hope you all are doing well. You know that we were doing logical reasoning of class 6. Logical reasoning of class 6, and our topic is mathematical reasoning. We were doing part 3, as you can see here. This is the part 3 of logical reasoning. We already done many questions, and our topic was mathematical reasoning. As you know that mathematical reasoning के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे. As you know that on mathematical reasoning is the actually playing with numbers. These all numbers जब इनके साथ हम प्ले करते हैं मीन्स हम गेमिंग करते हैं, मीन्स हम इनको फिगर आउट करते हैं. You have to figure out, yes, the rule, whatever rule is going on, whatever pattern is given to you, the ability to figure out the rule which exists in a given arrangement of numbers. नंबर्स का भी हो सकता है, लेटर्स का भी हो सकता है, हमने बहुत सारे किए थे. उसके बाद आपको पता है, एज यू नो, मैट्रिक बेस्ड या फिगर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू कर रहे थे, इन विच देयर वर 2 टॉपिक्स. मैथमेटिकल रीजनिंग में ही हम लोग मैट्रिक बेस्ड यानी कि फिगर बेस्ड प्रॉब्लम, उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. येस व्यूअर्स, as you know, we were on the question number 7. Yes, we were on that question which we had done till 6. We already had done in part 2, you know that, and in part 1 there are many examples. You can see, and you can go to there on Didi Sang Seekho channel. You can go there and can watch the examples of mathematical reasoning of class 6. And in second video we already had done many questions till 6, and as a 7th question was as your as you can see, it was as your homework. Firstly try you on, then comment me in the comment box, and after that we will do that question. I told you that na. And now today we are going to do question number 7. Look at the pattern first. But they are saying, okay, which number will replace the question mark, as you can see here. Okay, leave all things aside. Firstly, try to do it yourself and comment me in the comment box. And of course I will explain this. Whenever I will explain this, then please comment me and match your answer. Actually you have to match your answer. Whenever I will explain it, I will give the answer, then match with your answer and give yourself 4 marks. Yes, come on. उसके बाद अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है, इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग, देन गिव -1. बट इफ़ आफ्टर गिविंग माई क्लू then you solve the question, you can give yourself 3 marks only. And if you are in a group playing this number game actually, then give each friend as they solve the question. Who did first, give 4 marks, second 3, 2, 1, whatever, as you can do. Your game is okay. Let's start now. Your game is start now, and our question is, which number will replace the question mark? Where is question mark? Here that is. Look at here. Question mark है ना? And here these 4 alternatives are. अच्छा गाइस, पता है इसमें क्या होता है? इसमें यूजुअली ये होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, या तो हम ये अगर ये बड़ा नंबर दे रखा है तो इसका मीन्स होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर रखा है. अब वो या तो इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है या फिर इन 2 नंबर्स को. ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो इन 2 नंबर्स को कर रखा है या फिर इन 2 नंबर्स को, मीन्स फ्रंट वाले या फिर ये साइड बाय साइड वाले, यही किया होता है. और उसके बाद प्लस, अगर कम है नंबर तो माइनस किया होता है या स्क्वायर होता है. यूजुअली यही चीज़ ही होती है. चलिए हम देखते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा. 3 × 2 इट्स 5 एंड प्लस 5 × 4. यस, बताओ 20 या 25 है? नहीं है, नो. मीन्स ये रूल तो
ऑफ कोर्स ये रूल तो फॉलो नहीं चल कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं डिलीट। भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है। अभी हम सब कुछ डिलीट करके अपने दूसरे वाले रूल पे चलते हैं कि हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं अब। चलो, 4 टू ज़ा 6, हेयर दैट इज़ प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 6 होता है वो 4 टू ज़ा 8, सॉरी यहीं से मिस्टेक, 4 टू ज़ा 6 नहीं, मैं तो 3 टू ज़ा 6 अभी भी लेके चल रही थी। एक मिनट एक मिनट, 4 टू ज़ा 8 करना होगा ना हमें, हम ये वाला करके चल रहे हैं अब। यस, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 15, यस इट्स 23 नाउ। मैं भी सोचूं कि अब तो या तो ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था, बट यही होना चाहिए था। यस, 15 प्लस 8 करो, 15 और 5 कितना होता है, 23 बचे, 23, यस 23 होता है। यानी कि हमारा ये रूल अभी तक ठीक चल रहा है, इसने फिट बैठ गया। तो हम इसको भी यही करके देखते हैं। 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 4 ज़ा 32, करो इनको प्लस, यस इट्स कम 38, 38 आ जाएगा। हो रहा है मतलब ठीक हो रहा है हमारा। देन सेम हम इसके साथ करते हैं। 7 3 ज़ा 21 प्लस करते हैं हम इसमें 11 2 ज़ा 22, 3 एंड 4, हमारे पास 43 है क्या ऑप्शंस में? ऑफ कोर्स है यार, ये रहा, इट्स 43, सो आंसर वुड बी 43। इज़ इट क्लियर ना? इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का जो आया हमने प्लस कर दिया। 4 2 ज़ा 8 एंड सिमिलरली विद दैट सेकेंड फिगर एंड सिमिलरली goes with that third figure. So our answer is 43 as we get, as we conclude, निकाला ना हमने खुद कैलकुलेट करके, तो ये हमारा आंसर अब ठीक है। चलिए, अभी हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैच किया था आपका? अरे फिर कमेंट बॉक्स में मार्क्स डाल दो ना, कर दिया था तो फिर +4 मार्क्स यो। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अच्छा, माइंड में कई बार आता है कि +4 अगर ठीक है तो +4, अगर रॉन्ग है तो -1। वो इसलिए कि माइनस पॉइंट्स अपने पता होना चाहिए। +4 कि आपने कोशिश की, इसको करने का पूरा किया और ठीक किया उसके बाद, और -1 सिर्फ -4 क्यों नहीं, क्योंकि आपने कोशिश की उसको करने की, उस कोशिश के आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं स्टिल। कैसे मिल रहे हैं? माइनस नहीं हो रहे, वो सिर्फ एक ही हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए। चलिए, leave it aside and concentrate on your next question. Which number will replace the question mark? कहाँ है क्वेश्चन मार्क? यह रहा अब हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके पैटर्न को देखते हैं, क्या इन्होंने इसमें किया है, इसका पता चल जाएगा। तो चलिए, अब हमें इसको पहले फाइंड आउट करना है। अब ये क्या दे रखा है? अरे ये भी बिग नंबर दे रखा है, मतलब इसका प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का पूरा झोलझाल होने वाला है, राइट ना? देखते हैं क्या हो सकता है। 6 5 ज़ा 30, ये हमारे पास 30 आ गया, एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस करेंगे, 32 करने का कोई सीन नहीं है अभी तक जो मुझे लग रहा है। तो ऐसे करते हैं, क्यों ना हम इन सबको ही मल्टीप्लाई कर दें, सभी नंबर्स को। 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, या फिर 6 5 ज़ा मल्टीप्लिकेशन में तो ये सिर्फ चलता है, ऊपर नीचे सब कर सकते हैं हम। 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 3 2 ज़ा 6 होता है ना, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। अरे आ गया हमारा, बट ये आ गया हमारा नहीं हो सकता जब तक कि सेम इसमें नहीं हो। अगर सेम ये करने के बाद भी आंसर निकल रहा है तो आ गया जी हमारे पास फटाक से आंसर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 आ गया अभी इन तीनों को करके। ठीक है, इसको भी हमने ले लिया अपने इसमें, इसको भी ले लिया। अब ये 3 4 ज़ा 12, 120 आ गया ना।
अच्छा, इसका मीन ये आ गया हमारे पास। इसका मीन्स क्या है कि जो इसमें चला वही इसमें सेम फिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसके साथ भी करते हैं। 5 5 सा 25, 25 5 सा कैसे मर्जी कर लो, 5 4 सा 20, 24 सा फिर 5 सा, इस तरह से किस तरह से मर्जी कर लो। मुझे अभी क्या इजी लग रहा है, 5 5 सा 25, 25 4 सा 100, 100 4 सा, अरे अरे सबको मल्टीप्लाई करा ना। 5 5 सा 25, 25 5 सा 25 4 सा 25 4 सा 100, 100 4 सा करा, तो क्या आया हमारे पास, 400। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, किसी तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा सीन नहीं होता है कि पहले इसको करना है फिर इसको करना है, नहीं, इसमें नंबर्स को आप अप डाउन कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी इसको लिख सकते हो, जैसे मर्ज़ी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब हमें क्या पता चला कि बॉक्स 1 में क्या था, 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, एंड सेम विद 2 with the second box, 3 into 5 into 2 into 4 is equal to 120. Similarly happens with that third box, 5 into 5 into 4 into 4, it comes 400. So the option B is the correct answer for that question. Let's go to the next question now. Find the missing letter. देखो आ गए ना इसमें नंबर्स भी लेटर्स भी, और हमने एक क्वेश्चन में किया था मिक्स भी थे, अरे नेक्स्ट वाले में ही है इवन। चलिए अभी उस पर बाद में हमारा नंबर लगेगा, अभी तो इसी को ही देखते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर। ओके, लुक एट हियर। पहले तो इस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं, क्या है, ए सी ई। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं। मीन्स रो वाइज करेंगे तो हमें इस टाइप से चलना पड़ेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कॉलम वाइज चलेंगे तो हमें इस टाइप से चलना पड़ेगा। मैंने कल ही बताया था कॉलम और रोज में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर हम कॉलम वाइज करेंगे दैन यू हैव टू गो डाउन, इस टाइप से हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज रन अहेड, ठीक है। अगर हम रो वाइज करते हैं, चलो पहले हम कॉलम वाइज कर लेते हैं। ए के आफ्टर बी कट किया, बी को स्किप कर दिया हमने बीच में, एंड सी, सी डी को स्किप किया, ई आ गया, जी एच को स्किप किया, आई जे को स्किप किया, के एम एन को स्किप किया, ओ अभी हमारे पास ओ आ रहा है, मैच करेंगे अभी जब हम रो वाइज करेंगे तो। ओ पी को स्किप किया, क्यू, ठीक चल रहा है। अभी तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि इस तरह से हो सकता है। अच्छा, आप मे बी पहले अगर कॉलम वाइज नहीं करते हो, पहले ही रो वाइज करते हो, तो क्या होना चाहिए, तो भी हम देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, ए मैं ए को इरेज नहीं कर, ये ओ को इरेज नहीं कर रही हूँ, देखते हैं हमारा आएगा, आएगा ऑफकोर्स, क्यों नहीं आएगा। अगर ए में मैं +6 कर दूँ, +6 कैसे, A6 थोड़ा ना, बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6, आ गया 6 नंबर पे हमारा जी, आ गया ना जी, +6 करने पे। एंड सेम विथ जी, HIJKLM, आ गया हमारा एम। ओके, सेम विथ दैट, CDEFGHI, आ गया आई, JKLMNO, आ गया ना ओ, ठीक है ना, इरेज नहीं करके। क्या हमने रूल किया, या तो अगर हम रो वाइज चलते हैं तो +6, अगर हम कॉलम वाइज करते हैं तो हमारा होगा +2, या skip 1, whatever is comfort for you. Understood? Hence option A would be the correct answer for that question. Let's go to the next question now. Find the missing entry. ये वाली एंट्री हमारी पूरी मिस है, ये देखो क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है ना, इसी को ही हमने फिल करना है अब। अरे नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में यूजुअली क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है, बट हम
बिल्कुल क्लियर कहाँ नहीं है, हम समझ में आ जाता है, बट स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट विद आर आंसर। कैसे नहीं है कॉन्फिडेंट? देखिए इसमें क्या दे रखा है, जैसे आप ईच रो में देखो, इस वाले में देखो, बी सी ए मीन्स ए भी है, बी भी है और सी भी है, अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, ए बी सी इसमें भी है। यहाँ पे ए और सी तो है, बी मिसिंग है। हम इस तरह से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा, बट हो सकता है नन ऑफ द अबव भी हो। अब हमें चेक कैसे करें कि हमारा ठीक है? उन्होंने ये नन ऑफ द अबव दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए। कैसे कंफ्यूज करने के लिए? देखिए अगर तो ये 11 आ जाता है हमारा, फिर तो ठीक है। अगर 11 नहीं आता है तो क्या करेंगे हम? चलिए देखते हैं। अब इन्होंने किया क्या है इसमें, ये 23 कहाँ से आया? पहले तो ये देखो, ये यहाँ पे 11 कहाँ से आया, या फिर ये 2। कुछ तो हमें इसका लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। लॉजिक लगाएंगे तभी तो आंसर पाएंगे। यस, लॉजिक लगाओ आंसर ले जाओ। एक्चुअली लॉजिक लगाओ मार्क्स ले जाओ। यस, ट्रूली स्पीकिंग दैट। ओके, 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स अगर मैं कर दूँ 11 इंटू में 2, दैट वुड बी 22। अगर साथ में कर दूँ +1, मिल गया आंसर, ठीक है। और अब हम देखें इसी के साथ सेम, क्या सेम चल रहा है? 22 इंटू में 3, ये हमारा आ गया 66। कैसे? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। +1, ये अरे ये तो ठीक चल रहा है हमारा। एक मिनट, यस 67 आ गया समझ में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 34 आया, मीन्स 1 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मैंने 33 को करूँगी, अगर मैं 33 को करूँ मल्टीप्लाई इंटू में 1, देन दैट वुड कम 33। और फिर हमने जैसे यहाँ पे किया था +1 तो वैसे ही मैं इसमें +1 करती हूँ, तो क्या आया? 34 आ गया। ये वाला 34 मिड वाला, हम मिड वाला ही तो देख रहे थे। अब मिड वाला तो हमारा इजीली निकल रहा था ना, ठीक है। आ हो रहा है ना क्लियर? तभी हुआ ना, तभी हमने उसका 34C करा। 34C ये इसी तरह से आया हुआ था ये। अभी हमने 67 का भी चेक किया, 23 का भी चेक किया, तो यानी कि 33 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 33B। क्या हमारे पास ऑप्शंस में है? अरे नहीं है, तो हमारा आंसर डी होने के पूरे चांस है। तो चलिए मैंने इसको फिर से बिल्कुल क्लीन कर दिया। क्यों क्लीन करा है? ताकि आपको एकदम से सही से फिर से बता सकूं। पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, आपको पता चल गया था कि इसका आंसर क्या है। पता चल गया है ना इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब मैंने इसको क्लीन कर दिया है ताकि आपको सही से फिर से इसे रिपीट किया जा सके। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको। इस क्वेश्चन को फिर से चेक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, आप इसे कर सको। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बट विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। देखो हमने क्या किया था, द लेटर ए बी सी अपीयर वंस इन ईच रो एंड कॉलम, यू कैन सी हियर इन ईच रो एंड कॉलम में हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं, इधर भी नज़र आ रहे थे। ये देखो ए सी बी, ए बी सी, ए सी मतलब बी तो होना चाहिए, मीन्स जो हमारे पास ऑप्शन ए में हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। हमें पता चल रहा था कि हमारा आंसर यही ही होना चाहिए, ठीक है। बट हमने क्या सोचा कि नन ऑफ द अबव दे रखा है और हो सकता है कुछ ऐसा हो, तो हमें एक बार वो भी पता चल जाए, क्या पता ये वाला आंसर वाकई ही हो। तो जैसा कि आपको पता है वो निकला ही है, ठीक है। तो ऑल्सो इन ईच रो एडिशन ऑफ 1 to the product of the first and the third number, फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर की एडिशन हमने अभी सारी एक्सप्लेन करी है।
ठीक है, इनकी एडिशन, इनकी प्रोडक्ट, इनका, एक मिनट, इनका प्रोडक्ट करना था ना, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यू नो दैट। ठीक है, प्रोडक्ट एंड उसके बाद +1। हमने इसका भी किया, इसका भी किया। 11 2 22 +1 23, 22 3 66 +1 67। एंड सेम अगर मैं 33 करती हूँ, अगर मैं इस पे ले आऊँ 33, 33 इंटू में 1 +1 देन 34 आएगा। ये तो हमें पता चल गया था जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, तो अब हमें पता क्या चला, कोई ओवरऑल हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे होना चाहिए 33B, क्योंकि हमारा B ही मिसिंग है इसमें से, इन ईच रो एंड कॉलम। देखो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी B मिसिंग है। अगर इस तरह से चलते हैं हम, तो इसमें भी हमारा B ही मिसिंग है। B तो है हमारे पास, हम चुपचाप आंसर ये कर सकते थे, बट नहीं, 33 के साथ तो C है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो हमारा होने का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। तो therefore the middle term in the third row is 34, as you can see, and the missing entry is thus 33B. You know that. So option D is the correct answer for that question. देखो, स्टार्टिंग में हमें लगा था कि इसका ये आंसर हो सकता है। अरे कई बार वो ऐसे ही दे देते हैं, सच, एग्ज़ाम वाले कई बार ऐसे ही डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट देखो वाकई ही हमारा आंसर ये निकला है। निकला ना? आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। Okay, let's go to the next question now. Based on the following figure, look at this figure. Answer the question given below. ये देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, स्क्वायर आ गया। देखो, आपको मैंने स्क्वायर बता रखा है ऑलरेडी, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है। ठीक है, पहले हमें x की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू दे रखी है, दे रखी है ना। अच्छा, अब क्या दे रखा है इन्होंने, अब ये नंबर बिगर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का ही सीन है, कहीं सब्ट्रैक्शन का नहीं लग रहा है। चाहे इस वाले में भी देखो तो उसमें भी सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको, आप ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो ट्राई करो, अदरवाइज़ मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं इन फिगर 1, लुक एट हियर, अगर मैं कर दूँ 9 इंटू में 3, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दूं, और उसके बाद ये वाला इसमें प्लस कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27 हो गया, +3 30 हो गया ना, 30 आ गया हमारे पास आंसर हमारा। देखो, पूरा हमारा सर्कल चल गया। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 इज इक्वल टू 30। We get that, and same thing will happen, then that would be right, otherwise no। तभी ये कब ठीक होगा? जब हम सेम इसके साथ करके देखते हैं। यही रूल अगर हमारा 60 निकलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक में होता है और दूसरे में नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करती 9 3 ज़ा, तो तब भी तो हो जाता ना। ठीक है, अब हमें करके देखना है। चलिए, 7 8 ज़ा मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आ गया हमारा 56 +4, ये वाला 4 हो गया ना, क्या आया? आ गया हमारा 60, हो गया ना 60। अरे 6 और 4 10, 0 1 कैरी, एंड 5 और 6 हो गया ना। यस, तो चलिए, अगर हमारा यही लॉजिक सेम वाले पे बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, मीन्स हमारा सेम इसके ऊपर ठीक बैठ रहा है, तो ऑफ कोर्स इस पे भी ठीक चलेगा। ठीक है, चलो उस पर भी अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 +4 इट्स 20। मीन्स अब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई है?
x की, यस, यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पता चल गई 20। अब मेन क्वेश्चन क्या है, ये मीन्स 20 को अगर मैं 20 का स्क्वायर कर दूँ, एक मिनट, अगर मैं 20 का स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या आना चाहिए। 20 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया है वैसे अपने वीडियो में कि स्क्वायर का मीन्स 2 नहीं होता है, स्क्वायर का मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 400, एंड जैसे कि हम देख रहे हैं उसमें -1 होना चाहिए, तो इसमें से -1 कर दो, देखो क्या आना चाहिए। अरे 399, यस, 300 समथिंग ही आएगा ना, मन बनी तो सिर्फ प्लस हुआ है। Yes, as as you can see here, I am repeating again. As you can see here in figure 1, 9 into 3 plus 3 is equal to 30, and in figure 3 is also same thing is going on. 7 into 8 plus 4 is equal to 60. Similarly in figure 2, 8 into 2 plus 4 is equal to 20, and x की वैल्यू हमारी आ गई 20। ठीक है, तो x square minus 1, 20 into 20 minus 1, then option B is the correct answer for that question. Let's go to this question now. Okay, find the missing number. कहाँ है मिसिंग, अरे ये रहा हमारा जिसको हमको लेके आना है इन ऑप्शंस में से, इन 4 अल्टरनेटिव्स में से। चलिए ढूंढते हैं, करिए खुद ट्राई, एक बार तो करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस पे। अच्छा, मैंने ये ABC क्यों लिखी है, इसकी नीड थी ना इस क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई यूज़ दैट अल्फ़ाबेट्स। ओके, लुक एट हियर, देखो ये हमारा एक ये लेफ़्ट साइड का सेमी सर्कल है। अरे अच्छा नहीं डला, बट मैं ठीक करती हूँ इसको थोड़ा सा। ये हमारा, अगर मैं लेफ़्ट साइड का सेमी सर्कल, अब अच्छा नहीं डलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का सेमी सर्कल है और ये हमारा राइट साइड का है, ठीक है। तो अब क्या करना है, राइट साइड हम देखें एंटी क्लॉकवाइज, लेफ़्ट साइड सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक क्या होती है, क्लॉकवाइज इस साइड चलता है, एंड एंटी क्लॉक दिस साइड चलता है, ठीक है। तो अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखें और राइट साइड पे क्लॉकवाइज देखें, देखो जी की पोजिशनल वैल्यू क्या है, जी कहाँ है हमारा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, यस, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है 7। एंड वी की भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ, देखो हमारे 26 होते हैं, 25 23 एंड 22 आ गया यहाँ पे इस वाले पे। देखो देखने में कैसा लग रहा था क्वेश्चन, और एक्सप्लेन करते कितना इजी हो गया, क्लू मिलते ही हमें इजी हो गया, ठीक है। आ गया हमारा 22। एंड एन का भी चेक कर लेते हैं, हमारा 14 पे 1 2, अच्छा ये तो 7 है ही, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर पे है ना हमारा एन, ठीक है। तो अब हमारा क्यू चेक करना बाकी रह गया, ये 14 15 16 17, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 17, यस 17 वुड बी द मिसिंग नंबर। कैसा लगा, इजी था ना, देखने में ही ऐसा लग रहा था। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द लेफ्ट सेमी सर्कल मूविंग एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 एज यू कैन सी हेयर, एंड द राइट सेमी सर्कल मूविंग क्लॉकवाइज starting from G. Yes, each number represent the positional value in English alphabetical order of corresponding letters, whatever letter is given here. So the positional value of Q is 17, will be the missing number. So option B would be the correct answer. Let's go to the next question now. Okay, complete the following matrix. Look at here very carefully. देखो इसमें क्या दे रखा है,
Z2 X19 V नंबर्स भी दे रखे हैं और क्या दे रखा है, अरे अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमें क्या नज़र आ रहा है इसमें, 2 3 4 19 18 17, यानी कि यहाँ से तो इस साइड जा रहा है और यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, बट कंटिन्यू जा रही है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है काउंटिंग। एंड सेम थिंग इज विद दैट कि यहाँ पे 67 होना चाहिए, जो अभी समझ में आ रहा है, और हमारे पास इधर नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो अभी तक हमें यही आंसर ही समझ में आ रहा है। बट स्टिल 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 जस्ट वेट। क्यों वेट करनी है, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा सही जा रहा है आंसर कि नहीं जा रहा है, इसलिए हमें चेक करना है। अच्छा, उसके लिए हमें इस ABC की फिर से नीड होगी, इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास क्लियर है बिल्कुल। देखो, जैसे ये Z है, ZXV, दिस वन इज गोइंग ऑन ना, लुक एट हियर। तो Z के बाद X -2 V -2, क्या चला हमारा, -2। ठीक है, and same thing is with that TRP, T कहाँ है हमारा, T ये रहा, -2 एंड -2, ये चला -2। तो सेम इसके साथ होना चाहिए, A C, तो E होना चाहिए ना, E -2 करके है हमारे पास E। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ना ये, अरे हो गया, यस ये हो गया, क्योंकि हमने रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों चेक कर लिया। हमने रो वाइज अभी चेक किया कि -2 इसमें चलता जाएगा, ठीक है, और हमने कॉलम वाइज क्या चेक किया, -1 चेक किया, -1 चल रहा है। देखो, अगर हम कॉलम वाइज करें तो 2 ये 4 -1 3 3 -1 2 19 -1 18 एंड 18 -1 17, और ये भी कॉन्टिन्यूसली ही चलेगा ना, 68 -1 67 एंड सेम थिंग इज विद दैट -1। अगर हम इस कॉलम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके गाइस, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं ऑन द चैनल ऑफ धृति संग सीखो। यस, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई। आप अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आई मस्ट से thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel, like my video and share as much as you can। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए धृति संग सीखो चैनल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेंटर है आपके लिए फॉर द टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लास 6। हम क्लास 6 के लॉजिकल रीजनिंग के मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन पे चल रहे हैं, ये दैट इज़ पार्ट 3, और कल हम इसका पार्ट 4 भी ज़रूर करेंगे। अगर आप न्यू व्यूवर्स भी हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप वहाँ पे जाओ धृति संग सीखो चैनल पे, आपको बाकी क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ओल्ड व्यूवर्स भी हो, बहुत टाइम हो गया है इस वीडियो को अपलोड किए हुए, तो स्टिल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं तब भी आपको आंसर ज़रूर दूँगी। मैं रेगुलर चेक करती रहती हूँ अपने पुराने वीडियोज़ भी सभी, तो प्लीज़ आप जाओ और मेरी मुझे इसको और वीडियोस डालने के लिए इस टॉपिक की क्लास 6 की, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के इसके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो मैं क्लास 7 के ऊपर भी एक वीडियो रेडी करने वाली हूँ, एक सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज का टाइम है लॉजिकल रीजनिंग का। यस, तो थैंक यू सो मच, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।